Hello friends, welcome back to your YouTube channel Sum Edu, and I myself Kirit Karya, your account math, once again welcome you on the platform of online teaching. Friends, we are in lesson number 2, partnership final accounts or financial statements of a partnership firm. And in the last period of Friday or Saturday, Sunday was holiday, right? So today we are going to learn a new concept, new part of the financial statement. That is the second thing we are going to learn after learning trading account. Okay, so friends, we are going to learn today profit and loss account. Everything we have learned in class 11, but we never expect that you remember anything, right? So let's learn from the beginning. If you know that how to prepare profit and loss account, it would be a revision for you. And if you don't know, as you are not appeared for examination, आपने फाइनल एग्जामिनेशन दी ही नहीं है, तो शायद प्रिपरेशन भी ना की हो, उस वजह से अगर आपके दिमाग से निकल गया है तो फिर से एक बार दोस्तों कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसको हम एकदम ध्यान से समझेंगे. ठीक है दोस्तों, तो पहले 2 लाइन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में लिख लेते हैं. लेट्स राइट डाउन. टाइटल दे दो अपने पेज में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, अब लिखो ऑल द अकाउंट्स ऑफ administrative expenses, comma, sales and distribution expenses, sales and distribution expenses, comma, financial expenses, comma, other expenses and losses, as well as all the revenue incomes of the business are closed to profit and loss account to obtain net profit or net loss ऑफ द बिजनेस. ओके फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इसको लाइव आपके सामने. आप भी ड्रॉ कर लीजिए कृपया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सो एंड सो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन सो एंड सो. Now friends, first of all, let's remember, alright, that what was the closing entry of trading account. The first, if trading account has credit balance, it means gross profit. So friends, once again, let's play the game of debit and credit. Okay. What account is? According to my definition, account is the game of debit and credit. Let's play it. So friends, if it is having credit balance, which account? Trading account. Then what we do? Trading account debit. Where we transfer? To profit and loss account. So in this entry you can see that you have to credit gross profit to profit and loss account. Nothing comes without any entry, right? Every posting work
is done based on the basic journalizing process, that is basic journal entry. So profit and loss account credit, what we write? By gross profit, and this is we have transferred from trading account. Similarly, my dear friends, if your trading account shows debit balance, this is the revision of last period, that is gross loss. So you can see the account has debit balance, which trading account. So to close, what we do? We credit trading account. So trading account credit, and which account we debit? Profit and loss account debit. So you can see here we debit profit and loss account to gross loss, transferred from trading account. ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, दैट इज बाय डूइंग बिजनेस. Okay, now which category we close here? I have said you administrative expenses. Okay, the first category that we close of the expense level is administrative expenses. So each expense, for example, it's a salary. It is having debit balance. To close, I give credit effect. Okay, so credit effect to salary, ध्यान से देखना, to salary account. So debit to profit and loss account. So we can say each and every expense, whether it is administrative expense, financial expense, sales and distribution expense, other expense, any loss, all are having debit balance, and to close we give credit effect. So all the expenses will be debited. So we can say in other word also that profit and loss account is nothing but debit side is termed as expense side also. Agreed? Yes. So let's write down all the expenses we close here. First, to administrative expenses. Okay, please write down which are the administrative expenses. Into bracket you can write down salary, rent. Okay, salary, rent. You can write down electricity. All right, then after postage, insurance premium. I hope you all are writing. Okay, insurance premium, office expenses, contribution to provident fund, आप लिख सकते हो in short contribution to PF, audit fee, etc. So all these administrative expenses are debited. Then the next category is to sales and distribution expenses. माल को बेचने के लिए और बेचा हुआ माल हमारे जो कस्टमर है, ग्राहक है, वहां तक पहुंचाने के लिए हमें जितने भी खर्च लगते हैं वो भी बिजनेस का एक अंगभूत घटक है दोस्तों. उसको भी हम क्लोज करके कहाँ ले जाएंगे? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट. कौन कौन से आएंगे ये एक्सपेंस? प्लीज राइट डाउन. गो डाउन रेंट, कार्टेज आउटवर्ड, यस कार्टेज आउटवर्ड, showroom expenses,
advertisement, discount allowed, salary of salesman, traveling expenses, expenses related to delivery vans of business, packing expenses, etc. There are many. All right. Then friends, the next one is to financial expenses. Whatever the capital we have employed in the business, all right, regarding finance, what we pay expense. For example, interest on capital. Now, interest on capital is a financial expense, but here we are preparing profit and loss appropriation account. That's why we close to profit and loss appropriation account. But listen carefully friends, अगर हम profit and loss appropriation account नहीं बना रहे हैं, then it is closed to profit and loss account. Okay, अभी हम यहाँ नहीं लिखेंगे, right? Then you can write interest on loans, interest on bank overdraft, bank charges, bank commission. All right, these all are financial expenses. After that friends, we have other expenses and incidental losses. What do we mean by incidental losses? मतलब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उनके साथ कई लॉस ऐसे हैं जो जुड़ जाते हैं अपने आप में. आप बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो तो वहां चोरी होनी एक बात हो सकती है, सामान्य है. If you have business establishment, there may be theft. So loss due to theft is called an incidental loss. Alright? तो दोस्तों यहाँ other expenses and losses में क्या लिखेंगे? Depreciation, right? Bad debts, donations, yes, loss by fire, loss due to theft, loss on sale of asset or investment, etc. So these all are two other expenses and losses. Then two provisions. क्या करते हैं दोस्तों हम? सर्टेन प्रॉफिट, हमारे मुनाफा यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम अलग रख देते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रोविजंस. चौकस हेतु की वजह से अलग रखते हैं तो उसको प्रोविजन कहा जाता है ना. तो दोस्तों जैसे हम एक प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज बैड डेट रिजर्व. आप लिख सकते हैं बैड डेट्स रिजर्व. फिर दूसरा है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स. ऐसे जितने भी प्रोविजन हम करें, प्रोविजन करने से क्या करते हैं हम? प्रोविजन करने के लिए प्रॉफिट का इतना हिस्सा हम अलग रख देते हैं. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट. अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स अकाउंट क्रेडिट. ठीक है दोस्तों, तो ये सारे एक्सपेंसेस आगे रिकॉर्ड हो गए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अब बारी है इनकम की. तो कोई भी इनकम होगी दोस्तों, उसकी क्रेडिट बैलेंस होगी. क्लोज करने के लिए उसको डेबिट करेंगे. तो क्रेडिट कहाँ देंगे इफेक्ट? सारे के सारे इनकम्स क्रेडिट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. कौन कौन से इनकम आएंगे? फॉर एग्जांपल पहली इनकम लिख सकते हैं हम बाय रेंट रिसीव्ड. ठीक है, फिर ऐसे क्रेडिट करेंगे. इसमें आएगी बाय कमीशन और ब्रोकरेज received. फिर by interest received. फिर by discount received.
फिर बाय डिविडेंड रिसीव्ड, बाय सन्ड्री इनकम, बाय सेल ऑफ स्क्रैप। अब यहाँ बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वो तो प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपने कहा था, वो सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स, माल का प्रोडक्शन करते समय जो माल एग्जैक्टली हम चाहते थे ऐसे परिस्थिति में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये स्क्रैप हो गया। मैं एग्जांपल दूं आपको। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कहीं भी आप लाइव डोसा खाने जाते हैं तो इंसान ने जो बैटर होता है डोसा का जो है ना वो उसने लगाया और फिर उसने डोसा निकालने की कोशिश की तवी पर से, तो डोसा निकला नहीं, है ना, चिपक गया। अब वो परिस्थिति में क्या हुआ, आपका माल वेस्ट गया। अब वो निकला हुआ डोसा बन गया था बट वो टूट गया था, तो हो सकता है कोई पर्सन आके बोले भाई मुझे चलेगा, बोले ठीक है 10 रुपये में ले जाओ, वैसे 40 रुपये में डोसा दे रहा है, ये टूटा हुआ डोसा उसने 10 रुपये में बेच दिया। दिस इज अ सेल ऑफ अ स्क्रैप गुड्स। तो अगर सेल ऑफ स्क्रैप गुड है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा, है ना। बट अगर इसके अलावा कुछ भी हम स्क्रैप करें, जैसे 2 चेयर है वो खराब हो गई हमने बेच दिया, दिस इज अ स्क्रैप आइटम्स, बिजनेस की स्क्रैप आइटम्स है, उसका सेल कर रहे हैं तो दैट इज एन इनकम credited to profit and loss account. ऐसे ही by profit on sale of asset or investments. Okay? फिर याद रखना दोस्तों by sale of ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इसको बेचने से जो मिलती है इनकम वो भी यही है। राइट? तो दोस्तों ये सारी इनकम्स हमने क्रेडिट कर दी, ठीक है। अब एक्सपेंस को इनकम के साथ मैच करेंगे, जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। तो for example credit side का total is larger one, writing total on both the sides, so entry would be profit and loss account debit, यहाँ amount missing होगी, हाँ। for example credit total हुआ 1,20,000 और debit total हुआ 70,000, तो मैं दोनों साइड क्या लिखूंगा 120, और यहाँ कितनी अमाउंट मिसिंग हुई 50,000, इसको क्या कहूंगा, this is what your expenses are less, incomes are more, so this is your net profit, तो यहाँ लिखूंगा to net profit, and where I transfer this 50,000 rupees, this 50k friends I will transfer to the next level, so profit and loss account के बाद का next level is profit and loss appropriation account, if we are preparing. If we are not preparing, then this 50,000k would be the divisible profit, तो इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ क्या ले जाएंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दोस्तों ध्यान से समझ लें उसकी एंट्री क्या हो गई, फर्स्ट क्रेडिट बैलेंस। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस को हमने क्या नाम दिया, नेट प्रॉफिट, है ना। तो वेयर वी हैव ट्रांसफर दिस नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट, है ना। दिस इज द एंट्री। ओके दोस्तों, अब दूसरी पोजीशन देखते हैं। देखो कोई भी सम आप करोगे, मैं फिर से ये बात बार बार कह रहा हूं, कोई भी सम आप करोगे तो आपको दोनों बैलेंस नहीं मिलेगी, either you get credit balance or debit balance, but this is a specimen we are learning, so I'm showing off
बोथ द थिंग्स। चलो हम लॉस को थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डेबिट टोटल हो गया 1,50,000 और हमारा क्रेडिट टोटल हो गया 1,20,000, है ना। सो विच टोटल इज लार्जर नाउ? डेबिट टोटल इज लार्जर। तो यहाँ लिखेंगे हम 30,000, 30K यानी 30,000, और इसको हम क्या बोलेंगे? बाय नेट लॉस। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसकी एंट्री क्या हुई? दिस इज अ डेबिट बैलेंस। ओके, सो डेबिट बैलेंस विल बी termed as net loss. And friends, what is closing entry? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस है, इसलिए क्लोज करने के लिए उसको मैंने क्रेडिट इफेक्ट दी। तो यहाँ भी मैं पहले क्रेडिट इफेक्ट देता हूँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट किसको करूंगा? जहां ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 मिनट एक बार आप बराबर से स्टडी कर लो, आप समझ लो, और फिर हम आगे बढ़े। टेक योर टाइम, बट वीडियो चालू है। आई विल बी बैक, डोंट गो एनीवेयर एल्स। ओके, जस्ट रिवाइज, कंप्लीट द टॉपिक, राइट डाउन द एंट्रीज, and then we'll move forward the next one. ठीक है दोस्तों, तो जल्द से हमारे पास चंद मिनटें हैं, फटाफट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी रिवीजन ले लेते हैं। सर रिवीजन क्यों? लेसन 1 में हम पढ़ चुके हैं, फटाफट इसका रिवीजन करवा देता हूं, है ना, ताकि हमारा बचा हुआ समय भी इस्तेमाल हो जाए और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप भी जल्दी ड्रॉ कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह यहाँ क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ सो एंड सो फॉर so and so, है ना। अब दोस्तों पहले 2 लाइन हम लिख लें। प्लीज स्टार्ट राइटिंग दैट 2 लाइन्स। यहां पे क्या क्लोज होगा? लिखो, ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स एंड ऑल द इनकम्स related to partners are closed to profit and loss appropriation account to find divisible profit or divisible loss। तो दोस्तों ये हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार है। आप फटाफट तैयार कर लीजिए, ड्रॉ डाउन इन योर नोटबुक एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। कहीं जाइएगा नहीं, हम यहीं पर बने हुए हैं। यस
यस फ्रेंड्स, तो आई विश दैट आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा। पहला काम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट यहाँ ट्रांसफर करेंगे, राइट। फर्स्ट एंट्री, अगर क्रेडिट बैलेंस यानी नेट प्रॉफिट है तो एंट्री क्या अभी जब हमने लिखी है, आप देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। सो बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे ही अगर डेबिट बैलेंस है किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो क्लोज करके यहां लाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब दोस्तों सारे एक्सपेंसेस जो पार्टनर्स के रिलेटेड है वो ट्रांसफर करके यहां लाएंगे। एक्सपेंस की डेबिट बैलेंस क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट इफेक्ट, तो डेबिट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है, उसका एक छोटा बच्चा है, अलग से बना रहे हैं। तो पहले कौन से एक्सपेंस लेंगे यहां, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, to A this much, to B this much, total this much। फिर सारे expenses like to salary, to partner, जिसका भी नाम है यहाँ लिख देना है, to commission, to partner, so and so, to bonus, to partner, so and so, to remuneration, to so and so, alright। ऐसे ही अगर हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड रखी हो तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट भी हमारा एक्सपेंस है। सो टू इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ सो एंड सो, हो गया, ओके। नाउ ऑल द इनकम्स विच आर रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर, हमें जो मिलने वाली है वो इनकम्स यहां क्लोज होके क्रेडिट होंगी, जस्ट लाइक दैट। जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जैसे दोस्तों हमें ए से इतनी मिली, बी से इतनी इनकम, टोटल इतनी। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर सो एंड सो, हो गया। लास्ट में कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि पेड ही फर्म अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अलग रखना चाहती हो, जस्ट लाइक एज अ रिजर्व, तो उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। बस अब जो रिजल्ट इसका आएगा देख लो फिर से एक बार, है ना। मान लो क्रेडिट टोटल 1,50,000, डेबिट टोटल 1,25,000, या तो दोनों साइड हम 1,50,000 लिखेंगे। यहाँ अमाउंट हमारी 25K आएगी, 25,000 का प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड टू डिविजिबल प्रॉफिट, और इसको क्लोज करके कहाँ ले जाएंगे, इधर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल फिक्स हो तो करंट अकाउंट, है ना। टू ए दिस मच, टू बी दिस मच, टोटल दिस मच। इससे उल्टा मान लो यहाँ 1,25,000 है और यहाँ 1,10,000 है, तो दोनों साइड 1,25,000 लिख के यहाँ हमारा अमाउंट कितना आया, 15K ऑन क्रेडिट साइड इन डेफिशिएंट। This is called by divisible loss। फिर से दोस्तों दोनों में से एक ही हो पाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट, दिस मच टू ए, दिस मच टू बी, टोटल दिस मच। तो दोस्तों इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या हुई, फिर से नंबर 1, ओके, देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, इसको हम कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट।
और उसकी एंट्री क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम, उसका कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट, है ना, जो सिस्टम हो उस हिसाब से। और नेक्स्ट, अगर डेबिट बैलेंस आई, इफ देयर इज डेबिट बैलेंस, इट इज टर्म्ड एज डिविजिबल लॉस। इसकी एंट्री आएगी पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो दोस्तों एक बार फटाफट आप देख लो, अगर लिखना बाकी रह गया हो तो लिख लो, ठीक है। विल बी बैक इन 1 मिनट। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने लेसन नंबर 1 में भी सीखा था और लेसन नंबर 2 में भी हम सीख रहे हैं, क्योंकि इट इज और इट कैन बी द पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा प्रेजेंटेशन ऑनलाइन लेक्चर पसंद आया है तो इस सुम एड्यू की चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके हर एक लेक्चर को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये लाभ हम सभी के माध्यम मतलब हमारे इस माध्यम से सभी तक पहुंचा सके। आप अपनी तबीयत का बहुत ध्यान रखें। कल फिर से मिलेंगे हम और 2 एक्सक्लूसिव जो टॉपिक्स हैं, कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स, उसकी और डिटेल में प्रेजेंटेशन के साथ हम समझौती लेंगे। तब तक के लिए आप सलामत रहे ऐसी दुआओं के साथ। बाय बाय एवरीवन।